ترجمان آزاد جموں کشمیر حکومت شوکت صاحب السلام علیکم. آپ سے پہلے بھی ہماری جب بات چیت ہوئی اس حوالے سے یہ آپ نے بتا دیا تھا, اشارہ دے دیا تھا کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا, چونکہ پہلے بھی 38 میں سے 35 نکات پر اتفاق کر لیا گیا تھا. بڑا ایکشن لے لیا گیا ہے, کارروائی کر دی گئی ہے, کیا کہیں گے سر؟ پہلے ریاستی عوام کی زندگیوں کا تحفظ, ان کے حقوق اور امن اما, نظریہ استحکام پاکستان اور اپنی سیورنٹی, اس کے بعد احتجاج بھی بنیادی حق ہے, جمہوری حق ہے, لیکن جس سکیل پر, جس سطح پر اس سے پہلے ٹریک ریکارڈ ہے وہ انسانی جانوں کا ضیاع ہے, خون خراب ہے, جلاؤ گہراؤ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, 177 FIR گورنمنٹ نے وڈرا کی ہے اور 45 زخمیوں کو معاوضے کی ادائیگی کی ہے. تو اب جتنے بڑی سطح پر لوگ آ رہے تو جلسہ, جب انتخابی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی استقبالیہ ہوتا ہے تو اس کے لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ آج جو SOP جاری کی ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے, وہ بڑی ذمہ داری اور بڑی ایک جمہوری اور جو ریاستی افراد کا بنیادی حق ہوتا ہے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا. لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس محدود ایک تعداد ہو جو آپ کے کنٹرول میں رہے. کبھی بھی ہجوم کنٹرول میں نہیں رہتا, سب ایک ذہن کے نہیں ہوتے. اور دیکھیں گھر میں بھی وہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, گھر میں بھی ہر سب کی ایک رائے نہیں ہوتی. تو کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ راولا کوٹ سے, ممبر سے, باغ سے, ظفر آباد, باغی جو 10 اضلاع ہے, نیلم, دیپا ویلی, چکوٹھی, یہاں سے لوگ آئے. ظفر آباد تو وہاں اینٹ بھی نہ ٹوٹے, گملہ بھی نہ ہلے. یہ افسانوی باتیں, یہ کرنے کی باتیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور شوکت صاحب, اس سے پہلے 14 قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں جب پہلے احتجاج کی آڑ میں باہر نکلے تھے یہ لوگ. 14 قیمتی انسان ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں بڑا, آپ کا ماشاءاللہ بڑا نیٹ ورک ہے سمر ٹی وی کا, اس وقت جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, ہماری صحت کولیپس کر چکی ہے. ابھی وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے سری کانفرنس کی تھی تو بیرون ممالک سے انہوں نے بندوقین کو بلایا تھا. تو اب ہم انٹرنیشنل کانفرنس کرنے جا رہے تھے کہ تاکہ ہم اپنی صحت کو پروموٹ کر. تو قدرتی حسن ہے جو کشمیر کے پہاڑوں پر, جو جنت نظیر وادی کہتی ہے, تو ہم شہروں کو بھی سہولت دیں, ان کی بھی وہاں ان کو آنے جانے کے لیے ان کی فیسیلیٹیٹ کرے, حکومت انہیں تحفظ فراہم کرے. تو اس کے بجائے آج یہ ہوا کہ جو سیاح جنہوں نے رخ آزاد کشمیر میں کیا تھا, ابھی میں راستے میں سفر کر رہا ہوں, یقین کریں میں سمجھ رہا تھا کہ جیسے کارروائی جا رہی ہے آدمی کی, اس طرح لوگ واپس جا رہے. اور میرا دل دکھ رہا تھا. وہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں جو رورل ایریا, جو رورل ایریا, اربن سے ہٹ کر رورل ایریا میں رہتے, تو ان کی ایک اس وقت لوگ پیئنگ گیسٹ کو بھی وہاں اکوموڈیٹ کر رہے تھے. نئے نئے گیسٹ جس علاقے سے میرا تعلق ہے, وادی لیپا, اس میں کبھی ایک گیسٹ ہوتا تھا, گیسٹ ہاؤس ہوتا تھا, اب 40 گیسٹ ہاؤسز وہاں بن گئے. تو ان میں اس وقت جگہ نہیں مل رہی تھی. اسی طرح جوسا میں آپ جائیں, 12 پہ, باقی جتنے بھی علاقے, کو پتہ چلتا تھا کہ ایک انسانی سرب کی رہل پہل ہے. تو یہ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا. اور پھر ہم اپنی معیشت کو استحکام دیتے دیتے جو پہلی جو روشنی تھی اس کو بھی گوار بیٹھے. اب بھی وقت ہے, اب بھی پانی سر تک پہنچے, سر سے گزرا نہیں. تو ایکشن کمیٹی کے ہمارے بھائیوں سے, تمام سیاسی جماعتوں نے ریکویسٹ کی, اور میں باہر یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے. ہم نے کوئی ان سے لڑائی, یہ بلیو لینڈ فاکس لینڈ کی جنگ نہیں ہے, یہ بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان جو روایتی جو جنگ ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک حقوق کی بات تھی, لیکن حقوق کے بعد میں جب آپ کو زوم ہو جائے کہ فیمس پن بہت ہے,
लीडरशिप का। शौकत साहब, हकूक से तो बात अब आगे जाती दिखाई दे रही है। हकूक की अगर बात हो तो पहले 4 मुतालबात लेकर ये कमेटी निकलती है, वो तस्लीम किए जाते हैं। 38 मुतालबात सामने रख दिए जाते हैं, जिनमें 35 मान लिए जाते हैं, बाकी पर भी बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद एहतजाज की, इंतशार की रविश अगर अपनाई जाती है तो ये जो बात है, जो सूरत हाल है, वो हकूक तक तो दिखाई नहीं दे रही। इसके पीछे मकासद कुछ और हो सकते हैं। जी, वो तो बहुत सारी चीजें अदर मेरे शम्स है। तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे अनवार अल-हक, ये सारा उनका किया धरा है। उन्होंने अपने रियासत के अवाम को इतना उनके साथ पहले उन्होंने इस लैंग्वेज में बात की कि लोगों को अर्ताश में लाया, उन्हें शदीद गुस्सा दिलाया, एहतियात की तरफ के पारा आजाद पतल पुल से गुजर कर दिखाए। फैसल मुमताज राठौर साहब जो वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर है, उन्होंने अब तक एक जुमला ऐसा नहीं कहा कि जिसकी वजह से, हालांकि उनकी तरफ से बहुत ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल हुई है। फैसल मुमताज राठौर साहब ने टॉलरेट किया और हमें भी उन्होंने यही पॉलिसी दी सॉरी कि टॉलरेट करें, हम हुकूमत में हमने सबको साथ लेके चलना है। मैंने कहा कि उन्होंने 3 रोज पहले कहा था कि जब हमारे भाई आएंगे एहतियात के लिए, जमहूरी आजाद के लिए, हम उनके लिए पानी की सबिलें लगाएंगे, हम मेडिकल कैंप्स लगाएंगे, हम उनकी जरूरियात का ख्याल रखेंगे, उनकी रिहायश। अब मुझे बताएं कि रियासत से ज्यादा क्या करे। और फिर जब हर तरफ से हुकूमत पाकिस्तान का देखें, हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तानी इदारों का, हम इस्लामी के इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कितनी हाई पावर डेलीगेशन बनाया, जिसमें जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब कमरजमान कायरा साहब, तारक फजल चौधरी साहब, एहसन इकबाल साहब और अमीर मुकाम साहब वो आखिरी दौर में शामिल हुए। उन्होंने जाकर 4 दौर मुजफ्फराबाद में किए। आखिरी मुजफ्फराबाद में हुआ जो 11 घंटे जारी रहा, ताकि कज़िया जमीन पर जमीन, चूंकि जिन लोगों की बात है, ऑनरशिप दी है हुकूमत पाकिस्तान ने। तो मुझे आज भी ये बिल्कुल। अच्छा शौकत साहब, हमारे समा की जो नाज़रीन हैं, देखने वाले, उन्हें भी ज़रा बताएगा कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसने क्या इक़दाम किए, कितनी मरतबा कोशिश की कि इस सारे मसले को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी है, इससे कितनी जो है वो आप लोगों ने नशिस्तें की हैं, बैठ के बातचीत करने की कोशिश की है, और 38 में से 35 मुतालबात मान लिए, उसके बावजूद जो है वो अपनी ज़िद पर बराजमान रहे। तो हमारे नाज़रीन को बताएगा कि आपके कितने एतबार हुए और किस हद तक कोशिश की हुकूमत ने कि इनके मुतालबात माने जाएँ, इनको टेबल पर लाकर बिठाया जाए, इनसे बैठ कर बात की जाए। सही। शौकत साहब से हमारा राब्ता जो है वो दोबारा करने की कोशिश करते हैं। अभी ये बड़ी खबर है, आपको अपडेट देना। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया और रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं और तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई है। वाज़ेह है कि 38 जो है वो मुतालबात सामने रखे गए थे, जिनमें से हुकूमत ने 35 मुतालबात मान लिए थे और उसके लिए रोड मैप भी तय कर लिया गया था। बाकी 3 पर भी बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो जिद है और जो हटदर्मी है उसको बरकरार रखा गया, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया। एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया है। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल की गई हैं। कलअदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। नोटिफिकेशन सदर आज़ाद कश्मीर, वजीर आजम, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज को भिजवा दिया गया है। अमन कानून की अमल दरामदी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से कहा गया है किसी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासती नज़म खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं।
हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया है। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई है। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है अवामी एक्शन कमेटी अवाम को खौफजदा करने, मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलव्विस पाई गई है। तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासिर करने के इल्ज़ामात भी शामिल हैं। एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, ये कमेटीज फर्स्ट शेड्यूल में शामिल की गई हैं। कलअदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है। मेरा समा कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आगाह कीजिएगा, हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है और जम्मू कश्मीर ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया जो हुकूमत जम्मू कश्मीर है, उसके हवाले से बताइएगा, अपडेट कीजिएगा, कितने जो है वो बातचीत के मराहिल हुए, किन किन मराहिल से गुजरे, उसके बाद जाके ये फैसला किया गया, ये बड़ा फैसला लिया हुकूमत ने। जी 38 मुतालबात जो है रखे थे और तकरीबन 6 माह से ये मुतालबात जो थे उन पर बातचीत चल रही थी। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान समेत आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लोग जो थे वो इनसे बातचीत कर रहे थे। 38 में से 35 मुतालबात जो थे वो मान लिए गए थे, लेकिन उसके बाद ये लोग फिर भी बज़िद थे कि वो एहतजाज करना चाहते हैं। और इससे कबल जब एहतजाज किया गया था तो 3 जिलों की पुलिस के तकरीबन 70 से ज़ायद लोग जो थे वो इसमें शदीद जख्मी हुए थे। इसी वजह से अब आज़ाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर के जो महकमा दाखिला उन्होंने एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है इसको कलअदम तंजीम करार दे दिया गया और जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीमें जो हैं वो भी कलअदम करार दी गई हैं, क्योंकि ये फर्स्ट शेड्यूल में इनका नाम जो है वो शामिल कर दिया गया और इसके जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके हवाले से ये बाकायदा परसोना नॉन ग्रेटा इनको जो है वो कहा जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं इनके मेंबरान हैं और बाकायदा तौर पर वो इस हवाले से काम कर रहे हैं। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया और नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर की ने तंजीम को जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके हवाले से भी एक बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जिसमें ये कहा गया है कि ये तंजीम जो है ये कल अदम है और ये 3 नामों से यहाँ पर काम कर रही थी और इस वजह से क्योंकि इससे कल जब इनके मुतालबात के लिए इन्होंने अपना एहतजाज किया था तो मुख्तलिफ जगहों पर लोगों और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था और इसके अलावा वहाँ पर तमाम रास्ते बंद करके सयाहों और वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनको महसूर किया गया था। जो इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं वो भी वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में ड्यूटी पर गए थे, उनको भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था और कुल जो तादाद थी 70 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके बारे में बताया गया था कि 70 से ज्यादा पुलिस के अहलकार जो है ये शदीद जख्मी है। इसके अलावा बहुत सारे अहलकार ऐसे जिनको वहां पर महबूस भी रखा गया था और उनको यरगमाल भी बनाया गया था। ताहम अब इसका ये फैसला किया गया है कि इस तंजीम को जो है वो कलअदम करा दे, क्योंकि इनकी जानिब से 9 तारीख को ऐलान किया गया है कि एक एहतजाज शुरू किया जाएगा, जिसके बाद आज ऐलानात भी बाकायदा तौर पर किए गए कि जितने भी सयाह कश्मीर में आए हुए हैं छुट्टियां मनाने वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि कश्मीर को आने वाले रास्ते जो है उनको बंद भी किया जा सकता है। इसी वजह से अब इस तंजीम को जो है वो कलअदम करार दे दिया गया, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो महकमा दाखिला ने जारी भी कर दिया है। क्या वजह हो सकती है अगर 38 में से 35 मुतालबात मान लिए गए, दीगर पर भी बातचीत अभी जारी है, उसके बावजूद एहतजाज की ऐसी कॉल देना, सयाहों का कहना कि यहाँ से वापस चला जाए, तो इसकी क्या वजूहात आप समझते हैं? देखिए जिस वक्त पहले ये एहतजाज हुआ था इनको इंगेज किया था ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से बल्कि वफाकी वज़रा जो थे वो बाकायदा तौर पर वहाँ गए थे और मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 माह से ये सेशन जो थे जारी थे, जिसमें अमीर मुकाम जो है वफाकी वजीर वो शामिल थे। इसके अलावा जो डॉक्टर फजल चौधरी पार्लिमानी अमूर के वजीर ये भी उस मुज़ाकरात में शामिल थे और इसके बाद उनके 38 मुज़ाकरात में से 35 को मान लिया गया था और बाकी जो 3 मुज़ाकरात थे उनके हवाले से ये कहा गया था कि अभी इस हवाले से मजीद बातचीत जो है वो की जाएगी, लेकिन उसके बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो इन्होंने बाकायदा तौर पर एहतजाज का ऐलान किया और जो ऐलानात किए गए वो इतने विजिबली नजर आ रहे थे कि वो अनरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि खास तौर पर जिस वक्त इन्होंने ये ऐलान किया तो सयाह बड़ी तादाद में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, नीलम वैली की तरफ बड़े तादाद में सयाह जो है वो गए हुए थे, उनको बाकायदा तौर पर ऐलानात के जरिए मुतला किया गया कि वो यहाँ से जो है वो आज़ाद कश्मीर से चले जाएं, क्योंकि
आने और जाने वाले तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। इससे कबल जब इन्होंने एहतजाज किया था गुज़श्ता साल, उस वक्त भी यही सूरत हाल बनी थी कि कंटेनर्स लगाकर जो रास्ते बंद कर दिए गए थे इनकी जानिब से, और बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर फंस चुके थे। बल्कि ना सिर्फ लोग बल्कि जो खुरोनोश की चीजें हैं उनकी तरसील में भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था इनको। इसी वजह से इनके अब मुतालबात मानेंगे और जितने भी सेशंस हुए उनमें इन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो एहतजाज नहीं करेंगे। जैसे कि भी आपने भी अपडेट किया कि इससे पहले जब एहतजाज किया गया था तब 14 कीमती जानें भी जो हैं वो गई थी इस एहतजाज के सिलसिले में, और अभी भी मौशी तौर पर भी इसका बड़ा नुकसान है। आगे इंतखाबात भी आने जा रहे हैं, उसमें भी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना। तो ऐसी सारी सूरत हाल में हुकूमत ने ये बड़ा सोच विचार करके ये फैसला लिया और कलअदम करार दिया गया इस तंजीम को। तो अब इसके बाद आप क्या समझते हैं, क्या बातचीत के कितने अदवार हुए, आगे क्या रास्ते ओपन हो सकते हैं, मजीद की बातचीत के रास्ते अभी खुले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आपके पास? जी देखिए, अब इस हवाले से ना तो मुज़ाकरात होंगे क्योंकि इस तंजीम को कलअदम करार दे दिया गया, और इसका बाकायदा जब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया तो इसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन की कापियां तमाम वफाकी वज़रा, वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों को जो है वो अरसाल कर दी हैं। ताहम नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि क्योंकि ये जमात अब कलअदम हो चुकी है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इसी के लिए और भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए गए हैं क्योंकि इस तंजीम को कलअदम करार दिया गया, और उसमें यह कहा गया कि तमाम डिप्टी कमिश्नर, एसएसपीज, सीटीडी और स्पेशल ब्रांच को के जो लोग हैं वो इनके खिलाफ जो कार्रवाई है उनको मौसर बनाएं। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, पुंछ और जो मीरपुर डिवीजन की इंतजामिया हैं उनको भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर हिदायत जारी कर दी। जबकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ये कहना है कि रियासत में अमन कानून की अमलदारी के लिए अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें वज़ारत दाखिला कश्मीर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि ये तंजीम क्योंकि अनरेस्ट में मुलविस थे, इससे कबल जो थे उनके मैं आपको इसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि इन पर तकरीबन 37 के करीब मुकदमात जो थे वो दर्ज किए गए थे क्योंकि इन पे पुलिस एहलकारों पर हमलों के मुकदमात थे, आम शहरियों की गुजरगाह को बंद करना। तो जब मुज़ाकरात हुए तो उनका इन 38 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी था कि तमाम मुकदमात को खत्म किया जाए और जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा किया जाए। और उस वक्त वफाकी हुकूमत और वहाँ की जो आईजीकी की हुकूमत है वो इस चीज पर मान गए और तमाम लोगों के मुकदमात खत्म करने के बाद जो गिरफ्तार उनके लोग थे उनको भी रिहा कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद वो बजीद हैं कि वो दोबारा एहतजाज करना चाहते हैं और उसी इंटेंसिटी के साथ ये एहतजाज करने चाहते हैं जिस इंटेंसिटी के साथ करना चाहते हैं।